Good morning everyone and welcome to the class. We are doing important questions which have come in the previous year board examination from your chapter United Nations and its organization, as this chapter is under your syllabus of RT3 paper 4. You have done your RT3 paper 3 today, and now you have to prepare for paper 4. So accordingly these questions are from those chapters which are to be there in your syllabus of paper 4 of RT3. ठीक है, इसमें दो चैप्टर हैं हमारे, एक तो ये यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड another chapter is South Asia, contemporary South Asia. So first we will discuss about this United Nations and its organization, and then that chapter contemporary South Asia से जो important questions हैं बोर्ड के उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, तो यहाँ पर कल हमने बहुत सारे इसमें पर्टिकुलरली इस चैप्टर से काफ़ी सारे 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. Most of them were 1 mark question, 2 mark questions were also there, and today we will discuss 4 marks and 6 marks questions. तो एक जो बहुत ही important question है जो कि कई बार ही रिपीट हुआ है. The question is, state any 4 criteria that have been proposed in the recent years for new permanent and non-permanent members of the UN Security Council. This question was for 4 marks in the year 2013, then again All India 2013, All India 2010, then again it came in the year 2018 and 2019 also. And in 2018 this question was of 6 marks. तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये रिपीट हुआ है, जिसके इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली आने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन एंड देन द आंसर विल बी डिस्कस्ड. क्वेश्चन इज, स्टेट एनी 4 क्राइटेरिया that have been proposed in recent years for new permanent and non-permanent members of the UN Security Council, of the UNSC. ठीक है, तो इसमें अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2018, 2019, 2010, 2013 इन सब में ये क्वेश्चन आया है. और 2018 में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, बाकी समय ये 4 मार्क्स का ही रहा है. इसमें ये बात होती है कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो देयर विल बी 4 क्राइटेरिया, द क्वेश्चन विल बी अबाउट 4 क्राइटेरिया, है ना. अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो इफ इट इज मेंशन्ड और नॉट, एटलीस्ट 6 क्राइटेरिया मस्ट बी मेंशन्ड बाय यू इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 6 क्राइटेरिया आप डिस्कस करेंगे 6 मार्क के क्वेश्चन में. ओके, तो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हमें कुछ इंट्रोडक्शन देना होगा, है ना। इंट्रोडक्शन क्या होता है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? व्हाट शुड बी आवर इंट्रोडक्शन? द इंट्रोडक्शन विल बी व्हाई देयर इज नीड ऑफ न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। इसकी नीड आखिर पर क्यों नहीं है, क्यों ये ज़रूरत पड़ रही है, इसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। क्योंकि रिफॉर्म्स की बात हो रही है, रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। द यूनाइटेड नेशंस शुड बी रीस्ट्रक्चर्ड, and whenever we talk of restructuring of a United Nation, it is actually the demand for the restructure of the Security Council, because Security Council is the most powerful organ of the UN United Nations organization, and it is most unrepresentative also, because 193 members are there, and in the Security Council there are only 15 members. So it is highly unrepresentative body and most powerful body, and that is why there is need to there is whenever we talk about restructure of the UN, it is actually about the restructuring the Security Council, है ना। अब दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि आखिर रिफॉर्म की नीड क्यों पड़ रही है। अगर हम रीस्ट्रक्चर की बात ही कर रहे हैं, न्यू परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करें, तो आखिर उसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? बिकॉज what happened that the circumstances has changed. This UNO came into existence in the year 1945, है ना। 24 October 1945 को UNO बना after the Second World War, after the end of the Second World War, and ये हम देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, लीग ऑफ नेशंस, विच वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट there was some weaknesses in that international organization, and what we find that after the making of this international organization, after 20 years of coming into existence of this international organization, the world has to face the another world war, that was the Second World War, ठीक है। तो अब जो ये एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार होता है, तो वट एवर जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो अपने सर्कमस्टांस के ही अकॉर्डिंगली बनता है। उस समय के जो सर्कमस्टांसेस थे 1945 में, जो सर्कमस्टांसेस थे उसके अकॉर्डिंगली ही यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन व्हाट वी फाइंड कि अगर 1945 के बाद आज, जबकि हम 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, इन दोनों समय के जो सर्कमस्टांसेस हैं, अगर उसको हम कंपेयर करते हैं, तो व्हाट वी फाइंड कि सो मेनी चेंजेस हैव अकर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 1945 कोल्ड वॉर का समय था, 1991 में सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एंड इसी के साथ कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो यूनिपोलर वर्ल्ड में बदल जाता है। जो लड़ाई कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बीच थी वो लड़ाई खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो हैं वो इमर्ज करते हैं आफ्टर द एंड ऑफ दी दिस यूएसएसआर। जो भी यूएसएसआर की कंट्रीज थे 15 रिपब्लिक से मिलकर बना था, वो सारे आज़ाद हो जाते हैं। देन वी फाइंड कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज करते हैं, जैसे इंडिया जो कि एक नए सेंटर ऑफ पावर के फॉर्म में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इमर्ज करता है। तो ये इतने सारे जो चेंजेस आ गए 1945 से लेकर के 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में, तो इन चेंजेस के अकॉर्डिंगली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट दैट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो चेंज, it should also be restructured according to the new circumstances, ठीक है। that should be in your introduction, but बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें। आपका इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही होगा कि 1945 और 21st सेंचुरी के सर्कमस्टांसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है ना। कंपैरिजन ऑफ द circumstances which was prevailing
in 1945 and in the beginning of है ना। तो ये जो चेंज है इसको आपको बताना है बस, बहुत वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। यूनिपोलर बाईपोलर से यूनिपोलर हो गया, कोल्ड वॉर एंड हो गया, और बहुत सारे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर जो है वो इमर्ज कर गए। जैसे इंडिया का एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, इसी तरह से मैक्सिको है, ब्राज़ील है, बहुत सारे नए पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो इमर्ज कर गए। तो बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस देयर इज डिमांड टू change the structure of the United Nations also. And when we talk of changing the structure of the United Nations, actually we talk about changing the Security Council. Okay, now we will see that there was a very high demand to restructure the UN. And because of this demand, what happened that on 1st January 1997, it must be come in your answer. जो अभी मैं बता रही हूँ ये आपके आंसर में जरूर आना चाहिए, क्योंकि जो क्राइटेरिया सेट किया गया है एक परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए, वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, 1 जनवरी 1997 को यूनाइटेड नेशन के देन सेक्रेटरी जनरल वाज कोफी अन्नान, और कोफी अन्नान ने क्या किया कि उन्होंने एक इंक्वायरी स्टार्ट की कि अगर हमें रिस्ट्रक्चर करना है यूएन को, तो कैसे इसका रिफॉर्म होना चाहिए, कैसे इसकी रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, क्या करना है। ठीक है, अगर यूएन के रिस्ट्रक्चर का मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का रिस्ट्रक्चर, और सिक्योरिटी काउंसिल के रिस्ट्रक्चर में जो एक अहम सवाल है, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि मेंबरशिप को बढ़ाना है। नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ाइए और परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ाइए। दिस इज द डिमांड ऑफ रिफॉर्म, है ना। तो ये भी तो आपका एक पैराग्राफ ये भी बनेगा कि अगर हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन में रिफॉर्म की बात करते हैं, तो उसका मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात है। और जब हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात करते हैं, तो किस रिफॉर्म की बात करते हैं, क्या रिफॉर्म चाहिए। रिफॉर्म हमें बहुत सारे चाहिए, बट यहाँ पर जिस रिफॉर्म की बात करेंगे हम, वो ये सिर्फ बात करेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के नंबर को बढ़ाने की डिमांड है। ठीक है, अब इस डिमांड को देखते हुए 1 जनवरी 1997 को देन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कोफी अन्नान ने एक इंक्वायरी स्टार्ट की कि अगर हमें रिफॉर्म करना हो सिक्योरिटी काउंसिल को, अगर हमें सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप को इंक्रीज करना हो, तो व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया to increase this membership, what should be the criteria for new permanent and non-permanent members of the UNSC, किस बेसिस पे हम नए परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को लें यूएनएससी में। इसके लिए कोफी अन्नान ने एक स्टार्ट किया इंक्वायरी, और तब हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया जो हैं वो प्रपोज किए गए कि किस बेसिस पे नए परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्लूड किया जाए, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है इसको उसी बेसिस पे जो इंक्वायरी किया कोफी अन्नान ने, उसके बेसिस पे ही ये क्राइटेरिया फिक्स किए गए। अब ये क्राइटेरिया क्या है, इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, बट व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, तो ठीक है आपका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रिफॉर्म की बात कर दी, बट जो मेन पार्ट है दैट इज क्राइटेरिया। तो इसमें जो बुक में आपके दिया है बस एक वो क्लॉज में दिया हुआ है अ मेजर इकोनॉमिक पावर, बट व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर देन इट शुड बी एलाबोरेटेड, है ना, कि इट शुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर, इट्स इकोनॉमी शुड बी स्ट्रॉन्ग, जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट शुड बी हाई, है ना। क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक टर्म्स की बात करते हैं तो एक ग्रोथ रेट को दिखाना होता है, जीडीपी को दिखाना होता है, तो उन चीज़ों को हम अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। दो इट इज़ नॉट गिवन इन द बुक, बट यू कैन मेंशन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जो आपका मेन आंसर है वो बिल्कुल बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा एलाबोरेट आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो क्या कहता है कि मेजर मिलिट्री पावर, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो
काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। So I'm writing down the criteria. So the first criteria is a major इकोनॉमिक पावर, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है अ मेजर मिलिट्री पावर। अब मिलिट्री पावर में बहुत एक मेजर होने का मतलब क्या होता है कि उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, डिफेंस पे उसका बजट का कितना परसेंटेज वो स्पेंड करता है, और वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेंडिंग ऑन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, है ना। तो उस उन चीज़ों को हम इसमें एलाबोरेट करने में उन चीज़ों को हम ला सकते हैं। देन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है substantial contributor to the UN budget। UN के बजट में उसका कंट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। बिकॉज अगर परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो आपको बजट में भी उसकी कंट्रीब्यूशन करना होगा, तभी आपको इस तरह से समझा जा सकता है कि आप एक सही कंटेंडर हैं, ठीक है। देन अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना। These are the 4 criteria. If the question is about 6 criteria, तो आपको 2 और ऐड करना होगा, like a nation that respect democracy and human rights, है ना। human rights और democracy का जहाँ respect होती हो। and 6th point हम दे सकते हैं कि a country that would make the council more representative of the world's diversity in terms of geography और economic system और culture, है ना। जैसे कि अभी अगर हम देखें तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें यूरोप जो है उसका वो डोमिनेंस तो नहीं कहेंगे, हाँ 2 कंट्री जो है वो यूरोप के हैं, है ना। एक तो अमेरिका हो गया, एक चाइना है जो कि एशिया को रिप्रेजेंट करता है, और फिर यूएस रसिया है जो कि थोड़ा पार्ट एशिया थोड़ा पार्ट यूरोप में पड़ता है। तो ये तो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, तो दोनों कॉन्टिनेंट से रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो अफ्रीका इज टोटली अनरिप्रेजेंटेड, देन साउथ अमेरिका इज ऑल्सो टोटली अनरिप्रेजेंटेड, है ना। तो इस बेसिस पे भी इसको किया जा सकता है, या फिर ये जियोग्राफी के बेसिस पे हुआ, या फिर हम इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पे भी देखें तो डाइवर्सिटी तो नहीं कही जाएगी, बिकॉज ऑल द कंट्रीज आर कैपिटलिस्ट। पहले तो जैसे था यूएसएसआर था तो यूएसएसआर कम्युनिस्ट था, चाइना कम्युनिस्ट था, बाकी के तीनों कंट्री सोशलिस्ट। चाइना और यूएसएसआर जो थे वो सोशलिस्ट थे या कम्युनिस्ट थे, और बाकी के जो तीनों कंट्री यूएस, ब्रिटेन एंड फ्रांस दे वर कैपिटलिस्ट। तो अब क्या है कि अब 4 कंट्री कैपिटलिस्ट हो गए, रसिया भी कैपिटलिस्ट में आ गया, चाइना कम्युनिस्ट है। तो इसमें डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कहीं कहीं बहुत जगहों पे मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया, तो उस वाली कंट्री को भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। कल्चर के बेसिस पे भी कि डाइवर्सिटी आए, है ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो ये हमारे क्राइटेरिया हो गए। इसमें आपका कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मेन पार्ट है वो बहुत एलाबोरेट नहीं हो पाएगा, ये तो छोटे छोटे ही होंगे, एक एक 2 लाइन में ही इसका आंसर होगा। इसमें कंक्लूजन में क्या हम देंगे, कंक्लूजन में हम देंगे कि ये जो क्राइटेरिया बताया गया है इट इज़ हाईली जनरलाइज्ड क्राइटेरिया। आप इसमें क्वांटिफिकेशन नहीं है। इकोनॉमी बड़ी होनी चाहिए,
है ना। मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए। अगर हम जीडीपी को ही क्राइटेरिया मानते हैं तो कितने जीडीपी को मानेंगे कि होने पर उसको हम एलिजिबल मानेंगे कि उसको परमानेंट मेंबरशिप या नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिल जानी चाहिए, है ना। इसी तरह से अगर मेजर मिलिट्री पावर है तो उसका क्या क्वांटिफिकेशन, इट इज नॉट देयर, जनरलाइज सारी चीजें हैं, तो इस बेसिस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर जैसे पॉपुलेशन की बात कही जा रही है कि ज्यादा पॉपुलेशन होने से, अगर पॉपुलेशन उस कंट्री के लिए एक लाइबिलिटी बनी हुई है तो उसको हम अच्छा पॉजिटिव कैसे कह सकते हैं? इट कैन नॉट बी अ पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि अगर पॉपुलेशन क्वालिटी अच्छी है देन ओनली द पॉपुलेशन विल बिकम एन एसेट, अदरवाइज इट विल बी अ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी वाली पॉपुलेशन को कैसे हम पॉजिटिव पॉइंट मानेंगे, है ना। इस तरह के बहुत सारी चीजें जो है उसको हम कहते हुए कि ये जो क्राइटेरिया है इनमें क्या लूप होल्स है, क्या कमी है, ये बताते हुए इस आंसर को हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। हाँ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस एज टू व्हाई इंडिया शुड बी गिवन अ परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये हम जानते हैं कि वी आर डिमांडिंग, वी आर क्लेमिंग, नॉट डिमांडिंग, वी आर क्लेमिंग this permanent seat in the United Nations Security Council. So on what basis we are claiming this membership? And you must understand there is difference between demand and claim. Claim it means कि ये मेरा हक है जिसको हम मांग रहे हैं, जो कि हक हमें नहीं मिला है, ठीक है। अपने राइटफुली हम उसको मांग रहे हैं, हम उसके हकदार हैं, तब हम क्लेम उसको कहते हैं। और डिमांड का जरूरी नहीं है कि हम उसके हकदार हैं, हमारी ये डिमांड है कि ये होना चाहिए। तो we are not demanding this permanent membership in the Security Council. Actually, we are claiming that permanent membership in the Security Council. Okay, तो इससे भी बहुत ज़्यादा, इस आंसर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप वाला जो क्लेम है उसमें, ठीक है। तो उसको भी हम लोग, आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन द क्वेश्चन सो दैट यू शुड बिकम अवेयर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना सबसे पहला काम होता है, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन यू विल नॉट बी एबल टू राइट द आंसर, है ना। तो पहला काम तो यही है कि क्वेश्चन को ये समझना कि आखिर आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट यू आर सपोज टू राइट डाउन इन योर आंसर, है ना। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस as to why India should be given a permanent membership in the UNSC. A permanent membership okay, ये दिस इज ऑल्सो जहां पर 4 रीजन दे रहा है, इट मीन्स कि दिस क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ओके, ये क्वेश्चन आपका आया है 2008 में ऑल इंडिया एंड देन 2016 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी हो सकता है अगर इसमें 6 रीजंस देगा तो, ठीक है। तो क्यों इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, इसके लिए जो हमारा जो आंसर होगा वो इसमें इंट्रोडक्शन, व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होगा, इंट्रोडक्शन ये होगा कि यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सुधार की जरूरत है। देयर इज नीड टू रिफॉर्म द यूएनएससी बिकॉज सर्कमस्टांसेस जो हैं वो चेंज हो गए हैं। और जब हम चेंज सर्कमस्टांस को बताएंगे तो उसमें ये कहेंगे कोल्ड वॉर खत्म हो गया, बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर में चेंज हो गया,
कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच की लड़ाई खत्म हो गई और बहुत सारे न्यू कंट्रीज इमर्ज कर गए, इंडिपेंडेंट कंट्रीज, एंड बहुत सारे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज किए, जिसमें से एक इंडिया है। एंड ये इंडिया का क्लेम है कि उसको मिलनी चाहिए परमानेंट मेंबरशिप। ठीक है, अब किस बेसिस पे हम ये डिमांड करते हैं, दैट विल बी द मेन कंटेंट ऑफ आवर आंसर, है ना। तो किस बेसिस पे हम डिमांड कर रहे हैं, इसमें पहला वही हो जाएगा, इकोनॉमिक, वी आर मेजर इकोनॉमिक पावर, है ना। और इसके प्रूफ में हम क्या देंगे, कैसे हम कह सकते हैं, ऑन व्हाट बेसिस वी कैन से दैट वी आर अ मेजर इकोनॉमिक पावर। हम बताएंगे कि हमारी जीडीपी जो कि 5th लार्जेस्ट है, जो कि हमने इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर में जिन चीज़ों को लिखा था प्रूफ करने के लिए कि इंडिया हैज इमर्ज एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, उन चीज़ों को यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट गिवन इन योर बुक बट यू कैन गिव दीज प्रूफ, है ना, कि हम इकोनॉमिक पावर कैसे हैं, बड़े इकोनॉमिक पावर कैसे हैं, क्योंकि हमारी जीडीपी जो है वो 5th रैंक पे पहुंच गई है। और नॉमिनल जीडीपी पीपीपी में देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी ये पहुंच गई है थर्ड में। फिर जो हमारे जीडीपी में एनुअल ग्रोथ रेट है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रहा है पिछले दो डिकेड से, वो 5.8% इसका है ना। ये सब चीज़ें देते हुए हम कहेंगे। फिर दूसरा जो है कि हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है ना, मिलिट्री पावर भी बहुत। अब मिलिट्री पावर में हम ये देंगे कि इंडिया में अगर मिलिट्री पर्सनल के हिसाब से देखें तो ये भी जो हमने कल जो डिस्कस किया था पहले वाली क्लास में, सेंटर ऑफ पावर, इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर, उसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिया था कि कैसे इंडिया का जो मिलिट्री पर्सनल है वो लार्जेस्ट है, 1.4 मिलियन है, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट है। फिर हमारा जो डिफेंस बजट है वो भी 3rd पोजीशन पे आता है, जो जीडीपी का जो पोर्शन हम डिफेंस पे स्पेंड करते हैं उस हिसाब से हम 3rd पोजीशन पे आते हैं। देन हमने मिलिट्री के अलावे अब जो तीसरा है वो हमारा पॉपुलेशन, चूंकि इसमें इन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन को एक क्राइटेरिया माना गया, तो हम उसको क्लेम करेंगे कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, है ना। तो दैट शुड बी द रीजन फॉर बिकमिंग वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। पॉपुलेशन, फिर हम क्या कहेंगे, बजट की बात बताएंगे कि बजट में हमारा कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है, दो इसके बारे में कोई डेटा इज नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक, सो यू डोंट नीड टू गिव एनी डेटा, यू जस्ट राइट डाउन दैट वी आर अ गुड कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, है ना। और इसके अलावे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है हमारा स्टेबल डेमोक्रेसी, जो कि ये पॉइंट हमारा कल वाले जो इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर उसमें भी ये पॉइंट्स आए हैं, है ना। तो स्टेबल डेमोक्रेसी है हमारी। और 5th 6th में हम दे सकते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, है ना, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन आंसर बनेगा। लेकिन इसमें कंक्लूजन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंक्लूजन में आप ये दे सकते हैं कि इंडिया की क्या वीकनेसेस हैं, किस कारण से इंडिया को नहीं मिल पा रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप। उसके पीछे जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर हम उस हिसाब से देखें कि जो कॉन्टिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से अगर देखें, जैसा कि एक पॉइंट इसमें कहा गया था ना क्राइटेरिया में कि जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सही से, तो क्या हम देखते हैं कि एशिया इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बिकॉज चाइना इज देयर एज अ परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, एंड 2 continents like this the South America and Africa, they are totally unrepresented, है ना। तो इस तरह में क्या होगा कि एशिया से ही फिर 2 लोग चले जाएंगे, तो ये हमारे पॉइंट को कमज़ोर बनाता है। फिर और भी कमज़ोर बनता है बिकॉज वी आर नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स। पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारा अच्छा रिलेशन नहीं होना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। और इसके अलावा एक ये सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्यों इंडिया को नहीं मिल पा रहा है या क्यों नहीं मिलना चाहिए, है ना। उसमें हमारे ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि अगर रिप्रेजेंटेशन कॉन्टिनेंट वाइज रिप्रेजेंटेशन देखें तो इंडिया को नहीं मिलना चाहिए। अगर हम इस हिसाब से देखें
कि जो इंडिया के और भी चीज़ें, हाँ, जो नेबर्स के साथ रिलेशन है वो अगर हमारा कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है तो भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उस केस में वीटो पावर के मिसयूज की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो बढ़ जाती है। देन थर्ड चीज़ ये भी आ जाएगा कि अगर एक इंडिया को मिलेगा परमानेंट मेंबरशिप, तो फिर अदर कंट्रीज जो कि दे आर ऑल्सो क्लेमिंग, लाइक ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, उनकी तरफ से भी ये क्लेम आ रहा है कि उनको भी मिलना चाहिए परमानेंट मेंबरशिप। तो फिर वो परेशान होंगे कि उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इंडिया ने एनपीटी और सीटीबीटी पे भी साइन नहीं किया है। इंडिया ने अनऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया हुआ है। 98 में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ उसमें हमने न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया ने किया उससे हमने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया, बट दिस इज अनऑफिशियल, वी आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट, है ना, बिकॉज वी हैव नॉट साइंड एनपीटी एंड सीटीबीटी। अगर एनपीटी सीटीबीटी पे साइन कर देते तो फिर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे निगेटिव पॉइंट है। फिर हमारे अगर कंट्री में भी देखें तो बहुत सारी चैलेंजेस है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ सोशल जस्टिस है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, ये सारे रीजंस उसमें आ जाएंगे। ये सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है, बट दिस क्वेश्चन कैन बी देयर। इट्स अ वेरी, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं मतलब मिलना चाहिए, उसके पीछे आपका क्या रीज़न, क्यों नहीं मिल रहा है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। So this is all for today, and we will discuss that contemporary South Asia, है ना, उस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे हम लोग अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे।